Assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining another episode of New Ideas at HR. I'm extremely excited and honored to welcome my guest today, Dr. Tahir Barlas. Dr. Tahir Barlas is a renowned occupational health and safety consultant in Pakistan with over 30 years of experience in the industry in managing and practicing organizational safety and health for various multinational and national organizations in Pakistan. He is international trainer for EOSH ITC ILO program and runs his own consultancy, Barlas HSE Solutions. And he's a trainer, auditor, advisor to various and multiple organizations across Pakistan. So really looking forward to this chat. So please join me in welcoming Dr. Tahir Barlas. Thank you so much, Dr. Tahir Barlas, for joining us today. It is indeed an honor for us to be speaking to you in these challenging times. थोड़ा सा अगर आप हमें थोड़ा सा अपना background बता सके in HSC, what have you been doing in Pakistan and what are your recent engagements? Right. Thank you, Samar, for your kind words. And also thank you for inviting me to this important conversation. मेरा background ये है जी कि I am from corporate sector or almost worked 25 years for various multinationals. My last stint was with Shell Pakistan as their country head of HSE, Health Safety Environment. Shell was growing in those days. Earlier, I had a stint with ICI Pakistan polyester fiber business. I used to be based in Lahore and Sheikhupura. And that was a great nursing ground for learning, I must say, in health and safety. Absolutely. They call it SHE, Safety Health Environment. Ji. But I started off from Glaxo many years back, and that was a 2-year stint as product specialist. There I started enjoying workplace. I started enjoying corporate sector. I enjoyed interaction with people. I started feeling a good feeling about workplace and corporate sector and engaging people and stakeholders. Right. So appetite was there right from the building. And ICI and eventually, ultimately, Shell exposure in Shell was really global. It was a world-class exposure. And I was part of many global teams as well. And I enjoyed multicultural interaction. Absolutely. So I started off from occupational health. Then I was given another hat of HSC as lot of blending and growth. And on that periphery was sustainable development. So all these things were adding to my set of skills. So I was looking for the opportunity to set my own consultancy. So when I left Shell, and it was in my exit email that I will be running my own consultancy with the name of Barlas HSE Solutions. Excellent. So for last 9-10 years, I'm thoroughly enjoying my consultancy stint, and I have several hats, both international and local clients. Bilkul, and we can see that with the work that you're doing, primarily Aajkal, we see you very engaged and involved with the new workplaces and what sort of safety precautions we need to practice in different areas. So मैं आपसे सीधा उसके बारे में, because that is the topic on everybody's mind these days, COVID-19. And I know you work with a lot of behavior-based learning, safety के हवाले से. But now we are looking at just a pandemic which has never been a situation for us in our lifetime before. So environments को क्या इस वक्त सबसे बड़ा challenge face हो रहा है? Factory environments, office environments. Absolutely, Ji. This is very relevant. This conversation is very, very relevant. This is risk-based. This is a major disruption. This is once in a 100-year event. Absolutely. जो Spanish flu था वो 100 years पहले आया था. और उसका जो स्पैन था 2 साल था, and reported and recorded cases are loss of life was more than 10 million. God forbid. So it's a very major threat. It's a real threat. We need to manage that. It's a major disruption. It's a major change. But it does bring every crisis and brings a lot of opportunities as well. I think there are several opportunities at workplace, in our professional lives and private lives. As professionals for capacity building, there will be several alignments and there will be several challenges as well. So we have to balance that. So number one challenge is this is actually workplaces. We are going through a major transition these days. It started off in December from Wuhan, China, and first came in Pakistan about 5 months back. And it has a very major impact. Businesses were closed. Gradually they are in the process of reopening and recommencing. And there has to be many changes.
And first of all, the major change, some changes have actually surprised us, even pleasantly surprised us also, like working from home. It has worked very well. Nobody could. Technology has worked very well. It has बिल्कुल. worked very well. Technology has worked very well. Then there is a advisory is also a live thing. It is keep on changing, and we need to know global benchmarks like WHO, CDC, Center for Disease Control of USA, Right. our own national advisory. They are doing a good job, and that your provincial advisory. So we need to trust these reliable benchmarks. Otherwise, a lot of gossip is going around, disinformation, misinformation on social media. तो मैं तो सिर्फ दिन में 2 दफा ये कैचअप करता हूँ in the morning and in the evening. मैंने तो छोड़ दिया So- कैचअप करना because now we need to move. Otherwise, it is a stress. बिल्कुल. It does trigger a lot of stress and anxiety unnecessarily. बिल्कुल. Because we will cross the bridge when bridge will come. बिल्कुल. And लेकिन डॉक्टर साहब, anxiety and मुझे- stress. जी डॉक्टर साहब हमसे Please. ये बताएं कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंडस्ट्रीज ओपन कर रही हैं, व्हाट आर द न्यू प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड? जो हमारी फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स है, वी नो के एक तो जी। हमारी मशीनरी ऑपरेट करना, वी नो दैट जी। द वायरस इज कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू फिजिकल टच, आपके हैंड्स एक्सपोज्ड हैं, प्लस आप फिर प्रोडक्ट्स कितना एक्सपोज हो रहे होते हैं. इफ एम्प्लॉय गॉड फॉरबिड इज इन्फेक्टेड विद कोविड, तो हम क्या अपनी कैसे पूरी सप्लाई चेन इम्पैक्ट कैसे हो रही है उससे? जी बिल्कुल जी, मैं इस पे आता हूँ जी. एक्चुअली 3 लेवल पे इम्पैक्ट आया है. एक फैक्ट्रीज और वर्क प्लेस लेवल पे है, फिर आपका टेक्नोलॉजी और एर्गोनॉमिक्स लेवल पे भी है, ऑफिस का डिजाइन बदल रहा है और चीजें, फिर बिजनेस मॉडल पे भी इम्पैक्ट आया है, स्ट्रेटजी पे. तो इस पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बात करते ठीक है, जरूर. फैक्ट्री लेवल पे तो ये है जी, जैसे आई गो टू द वर्क प्लेस समटाइम्स इट्स अ ब्लेंडेड वर्किंग दीज डेज. घर से भी कर रहा हूँ, कोई क्लाइंट कभी कभी बुला भी लेता है, तो गेट प्रोसीजर से ही चेंज आ गया है. स्टैगरिंग ऑफ टाइम टेबल है, एंट्री और एग्जिट गेट के प्रोसीजर्स बदल गए हैं. देयर यू विल सी अ गाय, मोस्ट लाइकली अ गार्ड स्टैंडिंग विद अ टेंपरेचर गन, यस, और वो आपको गन से आपका टेंपरेचर देखेगा. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज दिस, इफ पीपल हैविंग 100 around 100 temperature is not expected to enter the workplace, ठीक है. along with और कोई सिम्टम्स आपके हैं, तो इसीलिए गेट पे स्क्रीनिंग हो जाती है. वहाँ पे सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं. सम बिजनेसेस ने, फैक्ट्रीज ने, वर्क प्लेसेस पे टेम्परेचर टनल्स भी बनाई है, डिसइंफेक्टेड टनल्स भी बनाई हैं. Although WHO is not recommending those tunnels, their अच्छा, efficacy and effectiveness is questionable, because if high concentration of disinfectants are used, there is a risk of personal exposure as well ओके. while passing through that tunnel. So अगर आपने टनल लगा दी है डिसइंफेक्टेंट की तो ठीक है, अदरवाइज कोई रिकमेंडेशन एसओपी में पंजाब गवर्नमेंट की या सिंध गवर्नमेंट की नहीं है. नाइदर WHO is recommending that. तो गेट प्रोसीजर से ही चेंज शुरू हो जाता है. टेम्परेचर्स आर टेकन थ्रू थर्मल गन, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर. जी, फिर आपके सैनिटाइजर्स हैं. इट इज एडवाइजेबल के वर्क प्लेस पे जो है हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजीज हैं वो हमने लानी है, और हैबिट्स डेवलप करनी है, न्यू बिहेवियर. माउंटेड सैनिटाइजर्स, और इसमें रिकमेंडेशन मोर देन 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स. And I am sure when you use 70% alcohol use sanitizer through skin, it is not prohibited in Islam or Pakistan. फिर मैं यही कहने लगी थी, पाकिस्तान में तो अब एक और ये भी चैलेंज है ना कि ये भी challenge है. So I am sure people are taking it easy, not through this route. उसके बाद आप जाएं तो washrooms हैं, उसमें sanitation standards should be very high, and all the toilets should have flush system, should have a lid. एक route वो भी सामने आया है कि वहाँ से aerosols evaporate होते हैं. राइट. That is another route. Workplace की जो आपके equipments हैं, where sharing of equipment is there, there is a possibility of risk, which is why workplace should be disinfectant with 0.5% sodium hypochlorite. That is the recommendation of WHO. And commercial mass level applications are available in the market. Right. And admin is, I think, of various organizations along with HSC team, they are doing a good job. It's Right. a good opportunity for a good blending and team building along with HR, HSC, admin, and top management. And of course, at the end of the day, it's the line management. Health, safety, environment is the responsibility of the line management. It's But their doc- performance as well. एक क्वेश्चन जो इससे मेरे दिमाग में आता है इज दैट आई डोंट नो, आपके एक्सपीरियंस में एचएससी डिपार्टमेंट को कितनी वैल्यू दी जाती थी इन ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, एंड बजट्स कितने असाइंड होते थे वहाँ? बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट a change of the complete scenario at the workplace. बैठना कैसे है, sanitation, cleaning, equipments.
तो क्या are we seeing that mindset change in the industry? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी. इससे एचएससी, जिसे आईसीआई में हम शी कहते थे, शेल में हम एचएससी कहते हैं. 90% ऑर्गेनाइजेशन एचएससी कहती हैं. देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि यू स्टार्ट विद पीपल, हेल्थ, देन सेफ्टी, देन एनवायरनमेंट. एंड दिस बिग डिसरप्शन हैज एक्चुअली वैलिडेटेड दैट. क्योंकि होता ये था कि गुड न्यूज इज दिस कि दिस इज ऑन द हाई ऑन एजेंडा. ये बोर्ड रूम डिस्कशन में आ गया है, पहले भी आ गया था. मल्टीनेशनल्स में लाइक शेल एंड आईसीआई ये शुरू से एजेंडे पे हाई था. और इस पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे ज्यादा फोकस था. एनवायरनमेंट पे क्योंकि रेपुटेशनल एक्सपोजर होता है. हेल्थ एज थोड़ा छोटा हो जाता था. आई रिमेम्बर वन ऑफ माय प्रेजेंटेशंस इन द हेग शेल सेंट्रल ऑफिसेज नीदरलैंड में. तो मैंने वहां पे स्लाइड पे इंटेंशनली एस बहुत बड़ा लिखा, ई वाज अ बिग फॉन्ट एंड एच वाज वेरी स्मॉल. तो अब वो जो एच है वो बड़ा हो गया है, स्ट्रेटजी का हिस्सा हो गया है, बिजनेस मॉडल का हिस्सा हो गया है. ये किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी मीटिंग के डैशबोर्ड पे टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली पैरालाइज कर सकता है आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस. इट्स अ मेजर शिफ्ट नाउ along with safety. क्योंकि फायर और एक्सप्लोजन के इंसिडेंट आर मोर विजिबल, यू कांट हाइड दैट. एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ में लेटेंट पीरियड्स होते हैं 10 years 10-20 years. मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में कई महीने लग जाते हैं आपको बैकएक होने में बाज दफा. तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस कम थी. तो अब इससे ये है कि तीनों एलिमेंट्स ऑफ एचएससी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है और बजट मिल रहा है. गुड न्यूज इज दिस कि इससे जाहिर है कि मैनेजमेंट के लिए भी बड़ी मेजर लर्निंग आई है. इवन इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एंग्रो, डोलेंस, इंटरनेशनल स्टील्स, it is considered as a core value. So it has to be a top down bottom up approach. क्योंकि जब तक टॉप मैनेजमेंट से ये ट्रिकल डाउन नहीं करेगा, वर्कर इसकी बायन नहीं लेंगे. तो किसी भी इफेक्टिव वैल्यू एडेड प्रोएक्टिव एचएससी प्रोग्राम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें ऑल लेवल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है एम्प्लॉइज की, इंक्लूडिंग वर्कर्स. और अब जो नया स्टैंडर्ड आया है ISO 45001, जिसमें ILO का बड़ा मेजर इनपुट है, और मैं उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और टीम जो ट्रेनिंग की है यूनियन इटली में उसका मेंबर भी हूँ. तो ILO had a very strong input in this new standard. उसमें वर्कर की इन्वॉल्वमेंट पे बड़ा फोकस है. So involvement at all level is a key, and other important factor is honest and transparent and timely communication. It is very important to engage. और मैं देख रहा हूँ कि मेरे several clients in Pakistan and abroad, very often they are conducting staff communication meetings. और एक communication में बड़ी एक मैं समझता हूँ we have covered a distance as an industry in Pakistan. और इसमें जो यंग लीडर्स हैं, और पहले भी कई लीडर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, हमारी शेल में रेगुलरली स्टाफ कम्युनिकेशन मीटिंग होती है. एंड आई हैव गॉट सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद सम ग्रेट पीपल. लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि एक तो हमारी फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स, हम अब अपने नंबर्स पाकिस्तान के देख रहे हैं, नाउ इट्स कमिंग डाउन एंड वी आर लुकिंग एट अ कंट्रोल्ड सिचुएशन एट दिस पॉइंट. इंशाल्लाह इट विल रिमेन दैट वे. लेकिन अगर हम इसको एज अ पॉजिटिव सिग्नल ले कि अपनी वर्क प्लेसेस खोल देते हैं आज, व्हाट आर द रिस्क्स वी आर लुकिंग एट? बिकॉज आर वर्क प्लेसेस राइट नाउ इक्विप्ड कि हम इस पेंडेमिक को हाथ से बाहर ना जाने दें अगर इफ वी गो बैक टू वर्क टुडे? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जी. और इस पे ये है कि बिल्कुल वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज दीस डेज. आई थिंक कॉशियस अप्रोच इज एनकरेज्ड. इट शुड बी रिस्क एंड एविडेंस बेस्ड. और बहुत से अदारे ऐसे हैं जिन्होंने रीओपनिंग अपनी विद अ स्केलेटल फोर्स की है, जो की स्टाफ पे उससे ऑपरेट करा रहे हैं 50% स्ट्रेंथ, 40% स्ट्रेंथ. और जिन जॉब टाइप्स में घर से ऑपरेट हो सकता है, अभी भी दैट इज ए वायबल ऑप्शन, आई मस्ट से. लेकिन जाहिर है इकोनॉमी में और प्रिकॉशंस में एक बैलेंस लाना है. सारी चीजें क्लोज डाउन भी नहीं हो सकती. और स्मार्ट लॉकडाउन इज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट अगर इस पे ट्रू स्पिरिट पे इम्प्लीमेंटेशन हो. अब इस तरह से है जी कि नंबर्स आर इंकरेजिंग. हमें पॉजिटिव साइड भी देखनी है. मैं आज भी देख रहा था कि लॉस ऑफ लाइफ के जो रेट है वो भी कम हो गया है पाकिस्तान में, और ओवरऑल इन्फेक्शन रेट भी कम हुआ है. कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद टेस्टिंग कम करती है, लेकिन ओवरऑल थिंग्स आर इंकरेजिंग. अगर हमने प्रिकॉशंस ली और इस ईद पे वो नहीं किया जो लास्ट ईद पे लोगों ने किया था, दे गॉट ओवर एक्साइटेड और उसपे वो कोई भी प्रिकॉशंस नहीं थी. और मैं लोगों को कह रहा था कि रिलीजन इज बिटवीन मैन एंड गॉड. मैं खुद एक हाजी हूँ, हज किया हुआ है, उम्रे किए हुए. जब मैं हज पे गया तो वहां पे मैंने कोई हाथ से कुर्बानी नहीं की थी. They have given us a token, और that was a virtual act, holy act, और उसमें कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं हुआ था. So we should be little careful. और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे रिलीजन रिस्पेक्टफुल हैं, और हमारे इस्लाम में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. अब बड़ी ईद आ रही है, ईद उल जुहा आ रही है, आगे मुहर्रम आ रही है. We need to be
वेरी केयरफुल, प्रैग्मेटिक, और इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलीजन ये भी कहता है कि लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अब इसमें ये मैसेज है कि क्लाइंट्स हैं, उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू की है, पीसीआर टेस्टिंग की अपने एम्प्लॉइज की, और उसमें से कुछ साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आए हैं बहुत सी इंडस्ट्रीज में। तो अगर कोई साइलेंट या एक्टिव केस आ जाता है तो जाहिर है वो वर्क प्लेस पे तो नहीं आएगा। साइलेंट को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है अनलेस के बाद उसकी स्क्रीनिंग ना करे, और पीसीआर इसका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। और फिर 14 दिन कम से कम वो वर्क प्लेस पे नहीं आएंगे। उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो कुलीग्स थे जिनसे उन्होंने इंटरफेस किया या घर वालों से किया, उनकी भी आप टेस्टिंग करवाएंगे। और बेहतर ये है कि अब 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, 3 हफ्ते के बाद आप दोबारा करवाएं। फिर स्टेटस ये होना चाहिए कि पीसीआर शुड बी नेगेटिव एंड एंटीबॉडीज टेस्ट शुड बी पॉजिटिव। और एक अभी साइंस इवॉल्व भी कर रही है। देखें समर कि अभी कल WHO ये बता रही थी कि उनको 39 लोगों ने साइंटिफिक पेपर्स भेजे हैं, एंड दे आर क्लेमिंग दो साइंटिस्ट कि दिस इज नॉट ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रादर दिस इज ए एयरबोर्न इन्फेक्शन। दैट इज वेरी स्केरी। Not much today, exactly. जी, दैट इज वेरी स्केरी। उस पे प्रिकॉशंस और करनी पड़ेंगी, मास्क आपको और रिलीजियसली पहनने पड़ेंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एयरबोर्न इन्फेक्शन अगर ये क्लेम हो जाती है, देन तो द ऑफिस स्पेसेस एज वी नो इट टुडे विल एंड, बिकॉज हमारा तो क्लाइमेट भी ऐसा है दैट वी नीड एयर कंडीशनिंग। फिर हमारी वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होती है जिसकी क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में, फिर तो यू कांट बी इन दैट वर्क स्पेस एनीमोर। आपने इतनी सही बात की है, मैं एग्जैक्टली ये कहने लगा था कि जो और चैलेंज फ्यूचर में आ रहा है, एंड आई एम वरीड 2-3 दिनों से जब से ये बात आनी शुरू हुई है, इस पे फोकस आया है, और डिबेट चल गई है साइंटिस्ट में बहुत, इस पे बहुत बड़ी, क्योंकि ऑफिस में जो एयर कंडीशनर है वो सारे और सेंट्रल एयर कंडीशनर आर नॉट इक्विप्ड विद हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स व्हिच आर कॉल्ड HEPA फिल्टर्स, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है एयर सर्कुलेशन की, और एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिंजेंट करनी पड़ेगी, और बहुत सी वर्क प्लेसेस ये स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, डिजाइन में चेंज आ जाएगा जो एर्गोनॉमिक वाइज आएगा, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस रखेंगे, और अगर आपकी एयरबोर्न एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर तो 6 फीट भी इवन इज नॉट इनफ, तो एवरीबॉडी इज एक्सपोज्ड, और फिर 8 घंटे का एक्सपोजर है, आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आ जाएगा। एब्सोल्युटली। तो इसलिए व्हेन आई लुक बैक बड़ी तसल्ली होती है कि लेट ए फुल लाइफ प्रेजेंट एंजॉय करना आना चाहिए, फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए। That is another learning. और ये टाइम है for charity and donations also, because this virus has humbled us. बिल्कुल, this has humbled us. Absolutely. Dr. Saab, another rising trend that was on the market was the shared office spaces, जो हम देखते हैं हार्बर फ्रंट बिल्डिंग कराची में बड़ी फेमस है, it hosts some of the largest organizations in Pakistan. That was very fashionable. ये मेरे शेल के दौर में शुरू हो गया था जी, और याद है कि मैंने जी बताएं प्लीज। नहीं आप बताइए। अब तो छोटे छोटे भी बिजनेसेस खड़ी हो गई थी ऑफ शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस, जहां आप बिजनेसेस खड़ी हो। बिल्कुल। तो अब हाउ डू वी एंटिसिपेट, अब ये कल्चर आई एम अज्यूमिंग द फर्स्ट केस आई बिलीव कराची में रिपोर्ट शेयर्ड ऑफिस स्पेस से ही हुआ था, which created a mass effect and then a lot of scare. तो क्या कॉन्फिडेंस हम मिलेगा वापस इन कल्चर पे जाने के लिए हमें? माशाल्लाह आप बड़ी अपडेटेड हैं, और बिल्कुल सही आपने ये भी क्वेश्चन रेज किया है। अब इस पे बहुत बड़ा डिबेट और चैलेंज ग्लोबली आ रहा है। जो ऑफिस डिजाइनर्स हैं, जो एर्गोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर से वी माइट गो बैक टू क्यूबिकल्स, और 6 फीट ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स वेरी, उस पे बहुत से चेंजेस लाने पड़ेंगे। 50% वर्कफोर्स, 25% वर्कफोर्स, और मुझे याद है कि ये वर्किंग फ्रॉम होम इतना भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, रिमोट ऑफिस। व्हाइल वर्किंग फॉर शेल इंटरनेशनल एंड शेल ग्रुप, मुझे याद है आई वाज पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इन 2005 probably in Singapore, जिसमें we were asked to identify those job types जिसमें office place, work place is not required, क्योंकि उस वक्त per square feet cost भी का भी issue था, बहुत ज्यादा था, and those people, many job types should be rather with the customer. They should with the stakeholder instead of enjoying cup of coffee in the office. They should enjoy that cup of coffee with the customer. तो अब ये by default कोरोना ने जो है इसके ऊपर इसमें नई insight दे दी है, और teleworking has worked very well actually. Yes. I am doing my 90% work with international clients और local clients घर से ही कर रहा हूँ, और one off कोई client बुलाता है तो फिर पूरी प्रोटोकॉल के साथ जाता हूँ, और मैंने N95 जो मास्क हैं वो खरीद के रखे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, और उसमें जाके फिर पूरी प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ जो उस वर्क प्लेस की होती है। इसमें हमने कंप्लायंस कल्चर भी लाया,
वी ऑल हैव टू लीड बाय एग्जांपल. अगर हम नहीं कंप्लाई कर रहे तो हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते. तो कई पॉजिटिव इंटरवेंशंस हैं कि वन ऑफ मैं बैंक गया या एक जगह और गया जहाँ पे लोग नहीं कंप्लाई कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे इंटरवेंशन की है. और मैंने, हम कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आए हुए. पाकिस्तान में काफी लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं. तो हमें पॉजिटिव इंटरवेंशंस करनी है. ऑल द टाइम पॉपुलैरिटी स्प्री पे नहीं हम जा सकते. I think तो हमें इससे पॉजिटिव रहना है. as a customer, as a service जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, it is your responsibility also कि आप compliance कराएं ताकि एक जी एब्सोल्युटली बिल्कुल. उससे कमिंग बैक टू वर्चुअल ऑफिस एंड वर्किंग फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें दो क्वेश्चंस लेनी हो. क्योंकि एचएससी एग्जीक्यूटिव यूके ने अब, और ओशा भी उस तरफ जा रहा है जो अमेरिका का बेंचमार्क है हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का, कि देयर हैज टू बी ए मिनिमम होम ऑफिस स्टैंडर्ड. अब होम ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई स्केड्यूल ही नहीं, जितना बीबीसी में लाइव हुआ बच्चे दौड़ के आ गए लैब में. और इसमें हमें जो दूसरा है कि इससे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. जब एम्प्लॉयर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, एचआर दिखा रहा है, तो हमें भी चाहिए कि उसको घर से एक मिनिमम एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर और एक रूटीन रिक्वायर्ड है. एक मूड एलिवेटिंग प्लेस जहाँ पे अपना सब कॉफी का अरेंजमेंट हो, घर में सारी चीजें रखी हो. एट द सेम टाइम वी नीड टू ऑपरेट प्रोफेशनली and we need to stay focused. और it does bring another challenge which is of work life balance. क्योंकि घर का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर भी ये समझे कि घर चले गए हैं तो कोई पिकनिक मना रहे हैं. घर से ऑपरेट करना is no joy ride, I tell you. It is not. बल्कि इसमें ज्यादा आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ जाता है. था कि दुनिया में अब इसका भी मिनिमम स्टैंडर्ड बन रहा है. और इस पे जो कुलीग्स हैं, जो एचआर फ्लेक्सिबल है, लीडरशिप फ्लेक्सिबल है, तो हमें ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है और इंटीग्रेशन का ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, उसको ऑनर भी करना है. तो घर में भी एक मिनिमम स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें ऑपरेट करना है, मिनिमम स्केड्यूलिंग, एक रूटीन बनानी पड़ेगी, बट ए मूड एलिवेटिंग प्लेस. और उसमें जो है आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम डज नॉट मीन कि आप स्टीम बाथ स्वाना ले रहे हैं एंड पाउंडिंग योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल आइदर. तो और इससे वर्क लाइफ बैलेंस का चैलेंज भी आया है. तो इस पे एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है और ये टूल बड़ा इफेक्टिवली दुनिया में इसने डिलीवर किया है. टेलीवर्किंग, बिकॉज़ आई नो एचआर का जो एक बार-बार चैलेंज आता रहा है, एंड आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनका की सवाल होता है, हाउ कैन वी अज्यूम कि एम्प्लॉय काम कर रहा है घर से. तो दैट ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अब अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है पहले से. जी ज्यादा. आई टेंड टू एग्री विद यू. बिल्कुल एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं. आप सही कह रहे हैं. वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है इन दीस एनवायरनमेंट्स. जी डिस्टर्ब हो गया है. और इस सारी चीज ने एक दो और एंगल जो जिसमें एचआर की डायमेंशन है, वो ये है कि सारी क्राइसिस ने, पेंडेमिक ने, इट इज ट्रिगरिंग लॉट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस एज वेल, वरी एज वेल. तो टू सम डिग्री स्ट्रेस का होना इज पॉजिटिव. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस बिकॉज दैट डज ब्रिंग बेस्ट ऑफ यू, और उससे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ती है. लेकिन जिस किस्म का ये स्ट्रेस है, इससे लोगों पे बड़े इम्पैक्ट्स आ रहे हैं. लोगों की वल्नरेबिलिटी भी है. और बहुत से इदारों ने फ्रॉम एचआर एंगल से, मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने MOU साइन किए हैं विद काउंसलिंग सर्विसेज, NGOs. There are several good practices in Pakistan and overseas. That's very very important. Psychological counseling आपको देते हैं, psychological first aid. मैं पढ़ रही थी डॉक्टर साहब that this COVID-19 pandemic will also come to be known in history as the mental health pandemic. Because anxiety level raise हो गया even regular homes में. That's very different. बच्चे भी घर पर हैं, आपके मियाँ बीवी भी आपस में घर पर हैं, फिर जो जॉइंट फैमिलीज में हैं उनके लिए और भी एक चैलेंज होता है. तो वी कैन सी दैट बहुत से एंगल्स हैं जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं. आप सही कह रहे हैं जी. घरों में भी और वर्क प्लेस में भी माइक्रो एग्रेशंस हो रही हैं, आर्गुमेंट्स हो रही हैं. और जो USA है और नॉर्थ अमेरिका है, अगर आप आई रिमेम्बर अगर आप वहाँ सैन फ्रांसिस्को जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो चाइना टाउन है वहाँ है. तो चाइनीज एथनिक कम्युनिटी को कई दुनिया के पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में टारगेट किया गया है, which is totally unfair. तो इस क्राइसिस में हमें एक चीज का जो और फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव हमें ध्यान में रखना है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो कम्युनिटी और एम्प्लॉय शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड और टारगेटेड और लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ COVID-19 स्टेटस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब एक बार ठीक होके आते हैं, इसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, 30 डेज भी लग रहे हैं, 21 दिन भी लग रहे हैं. जब आपका PCR नेगेटिव आ जाता है और उसके बाद आपकी वो नेगेटिव आएगा और एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो फिर इसका मतलब है कि इम्यूनिटी बन रही है आपकी और आपका नेगेटिव भी आ गया. तो उनको वेलकम भी करना है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन फोल्ड में भी लाना है. और इस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जरूरत है
और रैशनल करने की भी जरूरत है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई ऑल्सो लाइक टू आस्क यू, हम पहले देखते थे कई ऑर्गेनाइजेशंस में वी डिड हैव अ डॉक्टर ऑन साइट जो कि आपको इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं विद एनी सॉर्ट ऑफ इशू। हाउएवर अब आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं, वो टेस्टिंग किट्स, होम टेस्टिंग किट्स भी बहुत अवेलेबल हो गई हैं, विच आर ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशंस को इस वक्त एचआर को बेची भी जा रही हैं कि यू शुड टेस्ट ऑन साइट इमीडिएटली अपॉन एंट्री। एक तो हाउ रिलायबल आर दे, शुड दोज बी यूज्ड, एंड सेकेंडली आप रोज किसी को टेस्ट कर सकते हैं फॉर दिस, मतलब हाउ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? देखिए जो लोग इसमें, वेरी गुड क्वेश्चन, और इस पे भी डिबेट चल रही है, क्योंकि एक तो पीसीआर टेस्ट है जिसको कंफर्मेटरी या गोल्ड स्टैंडर्ड आजकल कहा जा रहा है, और दूसरा जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, कई जगह कई इदारे वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको प्रोफेशनल लोग इस स्क्रीनिंग प्रोसीजर को हैंडल करें तो वो बेहतर है। और इस पे जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज है उनका लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है, कई गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स हैं जो अप्लाई करनी पड़ती हैं टू मेक इट मीनिंगफुल, और उसकी जो कंप्लायंस का लेवल है फिर उससे बढ़ जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है सारे प्रोसेस। तो मेरे कई क्लाइंट्स करवा रहे हैं, उन्होंने जब देखें पाकिस्तान में बड़ी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, मसलन हमने फर्स्ट टाइम वेंटिलेटर्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेड इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं। तो उसकी पहली लॉट जो है वो जो फवाद चौधरी साहब हैं वो कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं, तो उन्होंने पहली लॉट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी है। इज इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और वो पाकिस्तान में माशाल्लाह, अगर हम न्यूक्लियर हो सकते हैं तो हम वेंटिलेटर्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल हम मास्क भी बना सकते हैं। फिर बिजनेस मॉडल भी चेंज हुए हैं बहुत से। इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर चेंजिंग एंड रीविजिटिंग बिजनेस मॉडल। आई नो मेनी टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स क्लाइंट्स जिन्होंने अपनी ही एक असेंबली लाइन में मास्क बनाने शुरू कर दिए। बस वही ना, इन चैलेंजेस देयर इज अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तानी तो अपनी इंटेलिजेंस से प्रोफेशनल्स लाइक यू समर दुनिया में हैरान कर देते हैं, एंड दे हैव डिलीवर्ड एंड दे आर डिलीवरिंग अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। जहाँ भी आप जाएं दुनिया में, यूरोप अमेरिका में, टैलेंट तो हमारा बहुत माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, उसे चैनलाइज करने की और स्ट्रक्चर करने की जरूरत है, मेरिट लाने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस लाने की। बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी निकल रही है। और इस पे जरा क्वेश्चन मार्क है जी। अगर मेरे ख्याल में अगर ये प्रोफेशनल से कराया जाए तो बेहतर है, बजाय कि कंपनी का अपना स्टाफ। मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जो बात मैं यहाँ से शुरू कर रहा था कि 2 लैब्स थी शुरू में जो एक्रीडेटेड लैब्स थी, अप्रूव्ड लैब थी, अब वो 102 हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। और दे आर क्रेडिबल लैब्स, 102 लैब्स इन पाकिस्तान जो इस वक्त कोविड-19 की टेस्टिंग कर रही हैं, बोथ पीसीआर और दूसरी एंटीबॉडीज की। तो उन्होंने ये किया है कि जो एक रिलायबल क्रेडिबल लैब है, अप्रूव्ड लैब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसके थ्रू ये टेस्टिंग करवा रहे हैं। अपने कुछ क्लाइंट्स 100% टेस्टिंग भी करा रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो लोग टारगेट हुए हैं उनकी भी करवा रहे हैं। तो ये दोनों प्रोटोकॉल चल रही हैं इस वक्त, और इसमें एब्सोल्यूट राइट या रॉन्ग कोई नहीं है, अप्रोच शुड बी रिस्क बेस्ड। लेकिन अब ये हुआ है जी कि हेल्थ का बजट आ गया है और आना चाहिए स्ट्रेटेजी में। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो बिजनेसेस स्वाय मल्टीनेशनल्स के, जहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता था, यू रिमेंबर, एंड वी यूज्ड टू डवटेल दैट विद पेंडेमिक्स प्लान। मैं जब शेल में था तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैंडल दिस बर्ड फ्लू एंडेमिक एंड लेटर ऑन सार्स एपिडेमिक। तो मैंने ये दो इससे मिलती जुलती चीजें लेस डिग्री की हैंडल की हुई है, डायरेक्टली हैंड्स ऑन। और यही मल्टीनेशनल्स की खूबी होती है कि आपको एक्सपोजर बहुत होता है, आप सीखते बहुत हैं। तो अब ये नई प्रोटोकॉल्स बन गई हैं, तो अब इस पे हमने बड़ा हेल्प इंडस्ट्री को हम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी इसमें रोल प्ले किया है, और इंटरनेशनली भी। एक्चुअली तो इंटीग्रेशन का टाइम है, बजाय कि इससे पोलिटिसाइज किया जाए जो कई मुल्क कर रहे हैं। वी नीड इंटीग्रेशन ऑन दिस इशू, ना कि आप इससे डिवाइसिव हो। तो इस पे ये था जी कि केयरफुल होने की जरूरत है, रिलायबल क्रेडिबल लैब से करवाएं। दोनों अप्रोच ही ठीक है, रिस्क बेस्ड भी ठीक है, और जिनका बजट अच्छा है, बॉटम लाइन अच्छी है, और जिनकी विजन है। और कई ग्रुप ऐसे हैं जिनका प्रिंसिपल जो बाहर बैठा है वो कह रहा है कि आप 100% स्क्रीनिंग करवाएं, बट दे आर गोइंग फॉर पीसीआर। ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम। लास्टली डॉक्टर साहब, आपसे मैं जो पॉइंट एक टच करना चाहूंगी, आई वाज लिसनिंग टू अनदर टॉक। आजकल बहुत टॉक्स हो रही हैं, सो आई वाज लिसनिंग टू अनदर टॉक दीस डेज, जिसके अंदर somebody had very rightly mentioned, which made a lot of sense, is कि increased globalization की हम एक जनरेशन में रहते हैं, तो this probably will not be the last pandemic that we see in our lifetime. अब जो एक डिजीज हमने देख लिया दुनिया के किसी भी कोने से,
within a couple of months travel करके पूरी दुनिया में फैल जाती है. तो आर ऑर्गेनाइजेशंस नाउ प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, जैसे आपने कहा मल्टीनेशनल्स के पास तो फोरसाइट थी अपने आप को इक्विप करने के लिए, बट एज प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्व्स, are you now advising organizations to now change the way they plan and think about health, safety and environment? मैं समझता हूँ कि मैं जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी बड़ा क्रेडिट दूंगा. उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल और दे वांट टू ऑपरेट लाइक मल्टीनेशनल्स, रादर दे वांट टू एक्सीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एंग्रो की बिजनेसेस हैं, दाऊद हरकुलिस है, रियोन एनर्जी है, इंटरनेशनल स्टील्स है और डॉलेंस है. जब से ये आर्चिलिक ग्रुप में गए हैं और इनकी लोकल कमिटमेंट भी बड़ी स्ट्रांग है, ग्लोबल भी है और वो कॉन्टिजेंसी प्लान भी बना रहे हैं और उन्होंने बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग इस एरिया में कर रही है. और लर्न भी, वी आर एट द सेम टाइम वी ऑल आर ऑन द लर्निंग कर्व, कि साइंस इवॉल्व हो रही है. तो मैं समझता हूँ कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स इस पे काम हो रहा है जी. और इस पे मुख्तलिफ फोरम्स भी हैं, रॉयल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, आपकी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, पीएस पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, उनके थ्रू भी कई वेबिनार्स और नॉलेज शेयरिंग फोरम्स बहुत से हैं जिसपे हम जाते हैं और लोगों को बता रहे हैं. और हमें कॉल्स भी बहुत आती हैं, लोग पीपल वांट टू नो अबाउट दिस, लोग इस चेंज से अलाइन होना चाहते हैं. बड़े पॉजिटिव चीजें भी हैं, यंग लीडर्स भी हैं और हमारे जो इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं. तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इसमें हमारे एज ए नेशन वी विल अलाइन विद, अडैप्ट विद न्यू चेंजेस, रादर वी विल एक्सीड Inshallah. Thank you so much, Dr. Saab, for your time today. It's been such an honor and privilege to talk to you. बहुत points आपने ऐसे बताए which are so relevant today for organizations to follow. Really, thank you so much for your time. Thank you so much, Samar, for having me. Thank you. My pleasure.